Hello friends, this is Salim Khan from Professor Ram Megi College of Engineering and Management, Badnera. Now today I am going to teach you the subject mathematics, and today we are going to learn a new chapter from paper 2. It is application of definite integration or definite integral. Okay. So what are our today's outline? Here we are going to learn firstly area under the curve means that what kind of area we have given that in the example. The next thing is that area bounded of the curve axis and given lines means we have to find out the area of the curve by the given conditions. Third one is that area between the two curves. So this is the third type for finding the area for this definite integral. Okay. Now before starting this topic, firstly we want some prerequisite. Prerequisite means what we have already learned in the previous class, means some basics. So just look at this. What are the prerequisite for this definite integral? So in the previous chapter you have already studied the definite integral. Now you can see the geometrical interpretation of this definite integral. You have given that the curve. When you see the curve, so this is the given curve y is equal to f of x, and here we have given that this two lines. These are the x is equal to a as well as x is equal to b, means which are parallel to this y-axis, and also we have given that one axis, this is set to the x-axis. Now when you see the closed area for this point PQRS, so we have to find out the area of this particular curve, and you have to define this integral for the region A to B, means we have some limit point from this A to B. So you have to define this function for the f of x dx is equal to, now which are the boundary line for these 2 points. And when we have to find out the area, so it is denoted by phi of A minus phi of B. So you already studied this basics in the previous chapter. This is known as the fundamental theorem of integral calculus. Now we shall find the area under the curve by using definite integral. So our first point is that area under the curve. Okay. Now what is the area under the curve? So we have given that one curve. It is defined by, you can see in the function y is equal to f of x. This is the given curve, and this curve is a continuous function in the interval a to b. Means you have some boundary value for this function y is equal to f of x. So you can see this. We have take this given curve y is equal to f of x. Okay, this is the given curve, and you have given that the boundary value from this point A to B. Now when we close this region, so we get this closed region PQRS. Okay, and we have to find out this area of this particular shaded region. Okay. Uh, so firstly, the area shaded is bounded by this curve. This is the given curve, and the axis x एक्सिस. ओके, ये यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे ये एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, एंड यू हैव आल्सो गिवन दैट दिस टू लाइन ए टू बी. सो हमने यहाँ पे ऐसे कंसीडर किया, ये तो ओरिजिन है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज ये हुआ. सो यू हैव गिवन दैट दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू बी व्हिच इज पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस एज वेल एज x इज इक्वल टू बी, इट इज आल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो यहाँ पे ये जो क्लोज रीजन दिख रहा है आपको, तो जो शेडेड रीजन है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है.
अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमको फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है. तो व्हेन वी डिफाइन द एरिया, सो इट इज सिंपली डिनोटेड बाय दिस इंटीग्रल a to b for what given values y and with respect to what x, because which is on x axis. So here we have to take this integration with respect to x, and this is the limit of x. So also here we have to take the function with respect to x. So this area is denoted by a. So area of the shaded region के लिए जो फंक्शन है हमको वो दिया है f of x, और कौन सी बाउंड्री वैल्यू के बीच में दिया है a to b. So when we define the area, so it is denoted by a is equal to, okay, now you can see this. तो देखिए आप, अगर आपका कर्व x इज इक्वल टू g ऑफ y दिया है, और एक एक्सिस है आपका y एक्सिस, है y एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है, एंड यू हैव गिवन एट द लाइन y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d. तो यहाँ पे जो कर्व का शेप है वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ये y एक्सिस पे. तो ये हो गया आपका y एक्सिस. दो लाइन दिया था आपको, y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d. तो यहाँ पे हो गया आपका y इज इक्वल टू c टू y. Also you have given that the curve x is equal to 0. here exactly इसका जो है तो रिवर्स केस दिया. अब अगर इस तरीके से हो तो फिर जो गिवन शेड है, जो गिवन रीजन है, उसका आपको एरिया कैसे मिलना है. तो जैसे हम एज यूजुअल डिफाइन करते हैं, दिस एरिया इज डिनोटेड बाय a इज इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट आर द गिवन पॉइंट्स ऑफ द लिमिट c टू d. एक बाउंड्री वैल्यू दिया है, तो आपका जो फंक्शन था वो x के फॉर्म में था, इसलिए x आया. लेकिन आपका जो गिवन एक्सिस है y है, तो इट इज given that the variable with respect to y, इसलिए हम इसको with respect to इंटीग्रेट कर रहे हैं. now you have given that this limit, but x का जो वैल्यू है वो कितना दिया था आपको, g of y. यहाँ पे गलती से x आ गया, तो becomes do. okay, so you get the area under the curve if the function is x is equal to g of y, y axis, and we have given the two lines y is equal to c to d. okay, now nextly this area under the curve. So look at this. So when you see, just look at this. Find the area bounded by the curve y is equal to x square. अब देखिए, जब कभी भी आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो यू शुड नो व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिवन कर्व. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये जो आपका गिवन कर्व है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं पैराबोला. दिस दिस इज व्हाट, दिस इज योर पैराबोला. ओके, यहाँ पे जो है आपका ये है पैराबोला. इसको बोलेंगे हम पैरा, considered parabola. okay, and the second thing is that the y-axis, मतलब यहाँ पे ये गिवन का y-axis पे the axis x-axis and x is equal to 3. तो अभी y-axis मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, टेक्स्ट, हाँ, y-axis means x is equal to x is equal to 0. x-axis means y is equal to 0, and x is equal to 3. This is one of the given thing. So this is the example. when you see, this is the given thing, this is the parabola. ये दो हमको और पॉइंट दिए, एक है आपका y एक्सिस, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0, फिर x एक्सिस मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 था, और एक लाइन एक्सिस. अब पैराबोला है तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक. इसमें कंडीशन है कि अगर पैराबोला है और उसमें एक्स का पावर इवन होता है, इवन मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स का पावर इवन है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, तो ये आ गया आपका वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक. एंड द लाइन, सो इट इज सिंपली यू हैव गिवन इट 1 2 3, सपोज दीज आर द गिवन पॉइंट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे एक लाइन खींच लेंगे. दिस इज द लाइन एंड दिस पैरेलल टू x. अब इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर, सो वी गेट द क्लोज रीजन लाइक दिस पॉइंट टू दिस 3 to 0. तो अब ये जो आपका शेडेड एरिया है, इसमें हमको रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है. ओके,
So अब यहाँ पे हम देखेंगे, so it is very simple, the required area. So we have given that integral is 0 to 3 y into dx. So 0 to 3 कैसा है? Because we have given that the function for this y into dx means the given thing, so y into dx. For this is about x-axis, so we can take the limit for 0 to 3. यहाँ पे x का लिमिट हो गया 0 क्योंकि ये ओरिजिन है, और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है 3 पे, तो यहाँ पे ऐसे मूव जब करेगा तो यहाँ पे लिमिट मिलेंगे हमको 0 टू 3, इसके आगे आपके 0 टू 3। और y का जो वैल्यू है वो कितना दिया है आपका एक्स स्क्वायर का, आपको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमको पता होता है, पावर एक्स से बढ़ता है वही पावर से डिवाइड होता है, तो यू गेट एक्स क्यूब बाई 3। और यहाँ पे जो लिमिट्स दिए आपको कितनी दी है 0 टू 3। अब हमको इसको अप्लाई करने का मेथड भी पता है, व्हेन वी अप्लाई एक्स इज 3 अपर लिमिट, सो 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का क्यूब 27 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स वी गेट 9। लोअर लिमिट तो 0 है, लोअर लिमिट की कंडीशन ये होती है वी कैन टेक द नेगेटिव ऑफ दिस लोअर लिमिट, 9 minus 0 is 9. So this is one of the example for area under the curve. Okay. Now look at this. What is our second point? The second point is that we have area between the two curves. Okay. जैसे हमने एरिया अंडर द कर्व देखा, तो अब यहाँ पे एरिया बिटवीन द टू कर्व्स उसके लिए क्या है? सो वी हैव गिवन द टू फंक्शन. So these two functions are, when you see, so it is f of x as well as g of x. यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो we have given that y is equal to f of x and y is equal to g of x. These are the two given functions. इससे पहले हमने जो केस देखा उसमें एक ही फंक्शन दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों है, इसलिए अब दोनों के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए you have given that this two function y is equal to f of x and y is equal to g of x with the two equation of curve, और यहाँ पे ये शो भी कर दिया उसने। एक ये बोला है कि y is equal to g of x और ये बोला है y is equal to f of x। अब यहाँ पे जो आपको क्लोज रीजन मिल रहा है, लुक एट दिस, दिस आर द टू क्लोज रीजन। अब इसमें जब क्लोज रीजन है तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब दो कर्व दिया है, अब दो कर्व दिए तो दो कर्व के लिए क्या करना है हमको, एक पॉइंट यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड लिया है, सो वी गेट सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू ए, तो उसी तरह यहाँ पे आया तो ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू बी। अभी दो पॉइंट के बीच में जो हमको रीजन मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे दो कर्व दिया है, तो हमने उसको दो कर्व से जो एरिया मिल रहा है उसको बोला है हमने a1 माइनस a2। यानी आपका पहला जो एरिया a1 है उसको बोलते हैं एरिया बाउंडेड द कर्व। पहला कर्व दिया था आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू ए टू बी। ठीक है, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू कर्व। a2 को बोला है हमने एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इज इक्वल टू g ऑफ x, ये सेकंड वाला एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन तो सेम है, एक्स एक्सिस और ये दो जो हमारे को लाइन पॉइंट दिए है, लाइन एक्स इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू, दोनों में सेम। ओके, अब अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है, so the point of intersection of the given curve y is equal to f of x and y is equal to g of x can be obtained by solving the equation. So we get the required area. Look at this, यहाँ पे मिल गया हमको a is equal to, this is the mod of this a1 is what, f of x के लिए a to b f of x into dx माइनस दूसरा आपका फंक्शन था g of x y के लिए, तो उसके लिए भी सेम लिमिट है a to b, तो a1 माइनस a2, तो we get the integral form of the required area. Okay, इस तरीके से हम जो है तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल देख लेंगे इसको, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो वी हैव गिवन इट टू इक्वेशन ऑफ कर्व और टू इक्वेशन ऑफ फंक्शन, और इसका हमको इसके बीच में जो भी रीजन आएगा या जो भी एरिया आएगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको जो गिवन इक्वेशन है हमारा उसको लिख देते हैं यहाँ पे,
तो गिवन इक्वेशन जब लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला हूँ, ठीक है। अब ये दोनों जो आपके कर्व है, इसके लिए हमको जो कर्व का नेचर है वो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो y का पावर इवन है, इसलिए ये जो कर्व है इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ओके, यहाँ पे लिखा है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, तो यहाँ पे x का पावर इवन है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है दोनों कर्व के, वो यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे मिलता है। तब यहाँ पे मिल रहा है तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिलता है मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 0,0 मतलब ओरिजिन है, ठीक है। और आगे जब देखेंगे हम तो वो दो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए जब वैल्यू फाइंड करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है आपको, एक दिया है एक्स वाई में, दूसरा दिया है वाई एक्स में। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हम दोनों में से किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लेकर आ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इजीएस्ट वे था ये था कि भाई यहाँ पे वाई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है और यहाँ पे वाई है, तो हमको क्या करना है, ये वाई जो है इसको वाई स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हमने क्या किया, ये इक्वेशन को स्क्वायर किया। तो एक्स का स्क्वायर उसका तो हो गया एक्स रेज़ टू पावर 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81, वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर। अब आपके पास में वाई स्क्वायर का वैल्यू था 9x, तो आपने क्या किया, ये एज इट इज़ रखा है, वाई की जगह पे आपने रखा है 9x। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब किया आपने तो यू गेट 7 to 9x। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से x कॉमन लिया हमने, तो ये x कॉमन आ गया, ये बन गया आपका x क्यूब माइनस 9 क्यूब, बिकॉज दिस 9 क्यूब इज 7 to 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर है, दो फैक्टर को जब आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखोगे आप, ये सिंप्लीफाई किया तो वी गेट x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब मींस x इज इक्वल टू 9, सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। अब साइमल्टेनियसली था मतलब x और y में, तो आपको x मिल गया तो ना y भी मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, x का वैल्यू 0 पुट किया, कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं आप। तो अगर ऊपर में देखेंगे आपने यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया, तो यहाँ पे x जब 0 है तो y भी कितना हो जाएगा 0, तो आपको मिल गया 0 0। अब x का वैल्यू 9 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 9 9 जा 81, so y square is equal to 81, therefore y is equal to 9, so we get the order pair 0 0 9 9। तो इसमें मिल गया 0 0 9 9। तो जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हो गया आपका 0 0 और 9 9। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर 0 0 9 9, एरिया a1 माइनस a2। अब a1 हमारा हो गया यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x यानी कि ऊपर वाला, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में मतलब ही नीचे वाला, तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड आएगा। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना आता है अगर स्क्वायर किया आपने, सो वी गेट एक्स का वैल्यू अंडर रूट 9x, और दूसरा आ गया आपका वाई इज एक्स स्क्वायर बाई 9। तो हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 मतलब ये हो गया आपका 3 अंडर रूट ऑफ एक्स, 3 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये कितना हो गया आपका 3 एज इट इज। अब रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2, 1/2 अगर उसमें हमने 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 मीन्स इट इज 3/2। तो ये आ गया एक्स टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब 1/3/2 मतलब ये हो गया आपका 2/3 माइनस 1/9, तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया आपका एक्स क्यूब बाय 3। अब ये जो लिमिट है हमको यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इट इज़ वेरी सिंपल टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे इसका जो सिंप्लीफिकेशन है 54 और इसका आता है 27, so we get 27 square root. So this is one of the example for the area between the two curves. Okay, now अभी हमारा जो आज जो जो चीज़ हमने सीखी तो ये आपको ध्यान में रखने के लिए, so do simply remember to memorize the thing. Firstly, we have seen the area bounded by the curve y is equal to f of x axis and the line x is equal to a, x is equal to b। तो हमने देखा था कि वहाँ पे एरिया कैसे डिफाइन करते हैं आप, a is equal to इंटीग्रल a to b f of x into dx। अब ये लिमिट वालों के साथ इसको डिफाइन किया है, तो दिस इज वन ऑफ द। हाँ, इफ एरिया इज लाइज बिलो द एक्स एक्सिस मतलब वो अगर निगेटिव पार्ट में रहता है
तो उस टाइम में हम वहाँ पे एरिया जो लेते हैं वो लेते हैं मॉड, बिकॉज एरिया विल नॉट बी निगेटिव, नहीं होना चाहिए, एरिया शुड नॉट बी निगेटिव, नहीं होना चाहिए वो, और नहीं होता है क्योंकि एरिया है तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, और अगर आपको निगेटिव भी मिलता है तो इट इज सिंपली टेक द मॉड ए। उसका रिवर्स केस जैसे हमने देखा था कि अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर में हो तो उसका एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द सेकंड केस। अब यहाँ पे ट्रेसिंग ऑफ कर्व में कुछ आपके पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स ऐसे है कि भाई जो आपका गिवन कर्व है वो कौन सा एक्सिस पे सिमेट्रिक होता है, एक्स पे होता है, वाई पे होता है, या दोनों पे होता है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर आपका गिवन कर्व कर्व मतलब ये दिस सी ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे दिया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब आपका y को आप माइनस वाई से रिप्लेस करते हो और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं उसको कि इट इज सिमेट्रिक ओवर एक्स एक्सिस। उसका एक बेस्ट एग्जांपल ध्यान में रखने के लिए, अगर इसमें y का पावर इवन हो, इवन मतलब ऐसे, तो वहाँ पे जो गिवन कर्व है वो सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस पे। कर्व में अगर y का पावर इवन हो तो वो किस पे सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस में। y में इसका अपोजिट है, तो अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो वहाँ पे x का पावर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x को अगर मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस किया इक्वेशन में, और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। अब अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स और वाई को माइनस एक्स माइनस वाई से, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट्स है ये ध्यान में रखने के लिए, ये डायरेक्टली इस पे आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब आपने अगर वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया लेकिन कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर आप दोनों एक्सिस के लिए देखना चाहते हैं तो एक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से चेंज करके देखो और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस। सो यहाँ पे हमने आगे 3 पॉइंट देखा। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स हम देखने जाएंगे। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है ये 3 पॉइंट्स के साथ। और अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर में जितने भी एग्जाम्पल्स है, ये कैटेगरी है, ये जो पूछे जा चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखेंगे। सो थैंक यू।